آج کا سرمن اسپرچل یوگ کے حوالہ سے چین آف سفرنگ، دکھوں کی زنجیر، افسیوں 6 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ جس کے لیے زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے۔ اور دوسرا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلہ سے ہر جگہ پھیلاتا ہے۔ اور ایک ریفرنس 1 پطرس 2 باب 21ویں آیت۔ اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ آمین۔ مرکزی آیت متی کی انجیل 11 باب اور 30ویں آیت۔ میرا جوا ملائم، میرا بوجھ ہلکا۔ اس جوئے کو لینے والے اپنی زندگی کے اندر ایماندار کہلاتے ہیں، ان کی زندگی ہی دوسروں سے فرق ہوتی ہے۔ زندگی ایماندار کی دوسروں سے فرق۔ اگر معاشرہ میں ایک ایماندار دنیا جیسا دکھے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اور ہم ایسے بہت سے نقشے دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ منہ زبانی بس ایماندار کہلاتے ہیں، تو پریکٹیکل ان کی لائف کے اندر کام نہیں ہوتا۔ اور اس سیریز میں جو آپ سرمن سن رہے ہیں، آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ایمانداروں کے گروپ جو دنیا میں آپ کو ملیں گے یہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، بہت تھوڑے۔ میں اس ویژن میں جا رہا ہوں کہ چند ہی بچا لے۔ لاکھوں لوگ کہتے ہیں جی لاکھوں بچا لیں، آپ چند ہی بچا لیں، یہ بہت مشکل۔ اور میں نے 43 ایئرز منسٹری میں بڑی بڑی زندگیاں دیکھی۔ 100% جو ہوگا وہ کلیسیا سے دور نہیں ہوگا، اور باقاعدہ پراپر طریقے سے گواہی رکھتا ہوگا اپنے گھرانے میں اور کلیسیا کے اندر۔ مگر ہمیں جد و جہد کرتے رہنا ہے، کوشش، کیونکہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں وہی کلیسیا میں آئیں گے، یاد رکھیے۔ بعض لوگ ہم بار بار کہتے ہیں، اور وہ اپنے کاموں سے اپنے آپ کو کلیسیا کے ساتھ کتنا دکھاتے ہیں وہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ چنے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ بعض ہوتے ہیں چنے ہوئے مگر سستی کاہلی ان کو آ پکڑتی، ابلیس ان کے پیچھے لگا ہوتا ہے کہ کس طرح مار گرائے، پر وہ گر نہیں سکتے۔ یاد رکھیے اگر چنا ہوا ہے تو گر نہیں سکتا، اگر گر گیا تو لکھا ہے صادق گرتا ہے اٹھ کھڑا ہوتا۔ صادق گرتا ہے اٹھ کھڑا ہوتا کیونکہ وہ چنا ہو۔ پر شریر گرتا ہے تو بولیے پڑا رہتا ہے، وہ نہیں اٹھ سکتا۔ تو اس لیے ہمیں ایسے لوگوں کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور اپنے لیے خدا کا شکر کرتے رہنا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں لگایا۔ جس کی گواہی گھر میں ٹھیک نہیں ہے وہ کلیسیا میں چل نہیں سکتا۔ پیور 100% مسیح کے ساتھ کمٹمنٹ کرنے والے چلتے ہیں۔ اور آج کا سرمن جو یوگ کے حوالہ سے چین آف سفرنگ، دکھوں کی زنجیر، تو ڈیسما ورڈ ہے، گریک ورڈ ڈیسما، اور اس کا مطلب ہے امپریزنمنٹ چین، زنجیر سے باندھنا۔ سمجھے؟ جب زنجیر سے کسی کو باندھا جاتا ہے تو یہ یوگ ہے، یہ یوگ پڑ گئی اس کے اوپر۔ تو زیگوس کے مختلف میننگز میں بیان کر رہا ہوں، اور ویروس کے حوالہ سے بھی برڈن کا جو میننگ ہے وہ ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، اس کا جو ملائم اور اس کا بوجھ ہلکا ہے۔ اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور
جوا جس نے پہنا ہے وہ آرام، تکلیف میں نہیں۔ پر آج آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں تکلیفوں کے اندر، دکھوں کے اندر تو یہ کیسی ہیں؟ چین آف سفرنگ، دکھوں کی زنجیر کسی کے اوپر پڑی ہو، باندھا ہو اس کو دکھوں کے اندر۔ یہ نوٹ کر لیں کہ دنیا کا کوئی شخص دکھی رہنا نہیں چاہتا دکھوں، اور ایماندار وہ تو بالکل نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا کے ساتھ چلتا ہے تو دکھ کیوں مجھے ملے، وہ کہتا ہے مجھے دکھ ملے کیوں۔ پر آج کے سرمن میں نے آپ کو بتانا ہے دکھوں ہی میں رہنا ہمارا کام ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں بتایا بہت کم میری جو لائف ہے، میں جو کرسچن ہوں، بلیور ہوں، تو دکھوں سے پہچانا جاؤں، دکھوں کی راہ سے۔ اگر میرے اوپر دکھ نہیں آتے تو سمجھیے کہ میں نے کرائسٹ کا جوا نہیں اٹھایا ہوا، تو یہاں تو دکھ کو مانگتا ہی نہیں ہے۔ چرچ آنا یہ تھوڑی سی پرابلم نہیں سہ سکتے، پھر 2 گھنٹے بیٹھ کے بات سننا، ورشپ کرنا، یہ نہیں دل کرتا ہے دیری سے جائیں جلدی سے آ جائیں۔ تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے اپنی باڈی کے، نہیں دل کرتا ہے بس مزے سے کھانے ہوں، آرام ہو، ریسٹ ہو، پیسے ہوں، جاب ہو، بزنس ہو، یہ مزے والی زندگی ہو۔ یہ کرسچن لائف نہیں ہے۔ کرسچن لائف ہے ہر چیز کا لطف ضرور اٹھائیں، لکھا اس زمین پہ 100 گنا 100% بلیسنگ ملے گی، پر دکھوں کے ساتھ۔ دکھ آپ کا میرا یہ نہیں کہ پیچھا کرتے ہیں، ہمیں ان کو فیس کرنا، پیچھا نہیں، مرا کیا کر سکتے ہیں پیچھا۔ تو اس لیے لفظوں کو جب جس طرح میں بیان کرتا ہوں اسی طرح لینا۔ دکھ میرے پیچھے نہیں لگ سکتے، شیطان اس کی کوفتیں بیماریاں نہیں لگ سکتی، مگر مجھے دکھوں تکلیفوں کے لیے تیار رہنے کے لیے یہ سفرنگ کا جوا پہننا ہے، سمجھے؟ مسیح کی خاطر۔ یہ بھی ساتھ سن لیں، کس کی خاطر؟ یہ نہیں کہ بدی کے لیے مکے کھاتے پھریں، دکھ اٹھاتے پھریں، وہ دکھ نہیں کہ آپ نے غلط کام کیا ہے اور لکھا ہے کوئی بدکار، کوئی چور، کوئی حرام کار، کوئی ریاکار دکھ اٹھائے تو یہ نہ کہ جی میں کرسچن ہوں میں دکھ اٹھا رہا ہوں۔ او بھائی تو اپنے کاموں سے دیکھ، پہلے راست باز ہے اس کے دکھ فرق۔ دکھوں کی زنجیر جو ہے یہ تو ہتھ کڑیاں ہیں، چین یہ تو بیڑیاں ہیں پاؤں میں جو لگ جاتی ہیں مسیح کی خاطر، ویسے نہیں۔ پر آپ کو جب اسرائیل کی ہسٹری کا پتہ ہوگا تو کلیسیا کا بھی، اسرائیل ذرا بھی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے، ذرا بھی دکھ نہیں اٹھانا چاہتے تھے، اور اتنا کو پراسپر کیا خدا نے، اتنی کو بلیسنگ ان کو دی، آسمان کھول دیا، کہا تمہیں ہیڈ بناؤں گا ٹیل نہیں، اور جس کام میں ہاتھ لگاؤ گے برکت دوں گا۔ اتنی بلیسنگ، ملک کنعان میں لے گیا مصر سے نکال کر، اور چشموں کی سرزمین، باغوں کی سرزمین، اچھی جگہیں، گھر، بزنس، سب کچھ بھرپور، مگر شرارت ان کے اندر سے نہیں کی۔ انہوں نے یہوہ کی پرستش چھوڑ دی، دل نہیں کرتا تھا، برائے نام کرتے تھے، قربانیاں ملاتے تھے تو اس کے اندر بھی ریاکاری تھی۔ خدا نے ان کو کہا کہ تمہاری قربانیوں سے مجھے گھن آتی ہے، دعا پہ دعا کرو گے میں نہیں سنوں گا۔ اسرائیل نے بہت مار کھائی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں لوگ جانتے ہوئے پھر نہیں سمجھتے۔ پالوس کہتا ہے ہماری عبرت کے لیے کہ ہم عبرت پکڑ جائیں، نہیں باز ہی نہیں آتے۔ رفاقت کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، اور بھئی ہمیں تو رہنا ہے مسیح کے ساتھ۔ تو دکھوں کی زنجیر جو ہے یہ یوگ پہنیں گے۔ اگلی بات سنیں،
تو ہم مسیح کے نقشے قدم پہ ہیں، ادروائز نہیں، ادروائز نہیں۔ جو کرائسٹ کے فٹ پرنٹ ہیں ان کے اوپر ہمارا پاؤں آئے۔ کرسچینٹی دکھوں کی راہ سے ماسٹر کی طرح، کرائسٹ کی طرح اس کو فالو کرنا۔ اگر کوئی کہتا ہے میں مسیح کی پیروی کرتا ہوں، فالو کرتا ہوں، تو چین آف سفرنگ اس کے اوپر ہو۔ نوٹ کر، اگر کوئی مسیح کو فالو کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مذہبی ایماندار، مذہبی کرسچن بھی ہوتے ہیں، اسپرچل کرسچن بھی، تو فرق ہے۔ مذہبی بھی اپنے آپ کو بڑا اہم سمجھتے ہیں، اور اسپرچولی تو اور ہی سمجھیں گے ہیں، مگر ہمیں ہماری جو پہچان بائبل دیتی ہے وہ مسیح کی پیروی کرنا، فالو کرنا اس کو، تو وہ فالو وہ کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ جو پطرس کے خط کے اندر پڑھا گیا، ہم دکھوں کے لیے بلائے گئے، اسی کے لیے بلائے گئے ہیں، دنیا کے اندر دکھ اٹھانے کے لیے، اور یہ چوزن لوگ جو ہیں وہ دکھ اٹھائیں گے۔ اور لکھا ہے مسیح تمہیں دکھ اٹھا کر ایک نمونہ دے گیا ہے آگے، تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ تو نقش قدم پر میں کہتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں، چلتا ہوں، تو کیا میں نے سفرنگ کا یوگ پہنا ہے، چین پہنی ہے؟ کیا مجھے چین پڑی ہوئی ہے سفرنگ کی؟ یوگ میرے اوپر ہے، یہ جوا بندھن زنجیر کا میرے اوپر ہے؟ تو یہ ٹرم زنجیر کی کیوں استعمال پولس رسول نے کی؟ اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو تاکہ کلام کے سنانے کے اندر مجھے دلیری ہو، جس کے باعث میں زنجیر سے بندھا ہوا ایلچی ہوں، زنجیر بندھی ہوئی ہے، اور میں خادم ہوں، ایونجلسٹ ہوں، رسول ہوں، امبیسڈر ہوں، سفیر ہوں۔ آمین۔ ایلچی، زنجیر سے بندھا ہوا، بولیے ایلچی ہوں۔ آج کسی کو زنجیر پڑ جائے تو آپ بتائیں، وہ تو گھرانہ، وہ زندگی، وہ ضمانتوں کرانوں کے چکر میں رہیں گے، وہ سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ کہے جی ختم، گواہی ختم، اگر برے کام کرتے ہیں۔ پر اگر مسیح کی خاطر پکڑے گئے ہیں، یہ زنجیر پال کو بندھی ہوئی تھی، یہ یوک اس نے پہنا ہوا تھا، تو زنجیر یہاں پر جو مسیح کے لیے دکھ اٹھانے میں آ رہا ہے، تو یہ زنجیر ان دکھوں کا بیان کر رہی ہے۔ تو گویا مسیح کے خاطر دکھ اٹھانا، جھیلنا، یہ چین ہے، یہ یوک ہے جو مسیح کا ہے کہ میرا جوا ملائی۔ تو گویا مسیح کی خاطر دکھ اٹھانا یہ جوا ملائی، ورنہ دوسرا تو کوئی دکھ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ تھوڑی سی تکلیف نہیں اٹھا سکتے ہم۔ یہاں تو کوئی تھوڑا کسی سے بات کرے نا نصیحت میں، وہ نصیحت ہی نہیں سنتا، وہ اس طرح منہ اپنا پسارتا ہے، آگے سے ریئیکٹ کرتا ہے کہ جیسے اس کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، سمجھے؟ تو جیسا میں نے بتایا، گواہی دینے والے آپ دیکھیں ہفتہ بعد کہاں کہاں گواہی دی، کن روحوں تک پہنچے، کیا دکھ مسیح کے لیے اٹھایا، اپنے گھر کے اندر کس کو آپ نے سنبھالا، گواہی دی، کھڑا کیا۔ رزلٹ اس کا آج آئے، کل آئے، مہینے بعد آئے، سال بعد آئے، یہ ایک الگ بات ہے، پر آپ نے کتنی ایفرٹ کی، کتنے دکھ آپ نے اٹھایا، جو آپ کہیں جی میں نے مسیح کی خاطر یہ اٹھایا ہے، تو وہ اٹھائے گا تبھی اگر چین پہنی ہوئی ہے، یوک پہنی ہوئی ہے سفرنگ کی، تو وہ پیروی کرنے والا شخص ہے۔ پیروی چین نہیں ہے، پیروی یوک نہیں ہے، سمجھے؟ فالو کرنا یوک نہیں ہے، یوک دکھوں کی ہے، کیونکہ وہ نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر وہ فالو کرتے ہیں، وہ فالو کرتے ہیں نقش قدم کے اوپر۔ میں آپ
ہم آتے ہیں نا، بلیور کہلاتے ہیں، چرچ میں بھی آتے ہیں، ورشپ بھی اٹھاتے ہیں، تو ہم یہی کہیں گے نا ہم فالوور ہیں، ہم فالو کر رہے ہیں، نقش قدم پہ چل رہے ہیں. تو پھر یوک کس کا ہو، چین کس کی پڑی ہو؟ وہ تو کہتے ہیں میں زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں. آمین. تو کیا ہمیں زنجیر پڑی ہوئی ہے؟ کسی نے باندھا ہوا، کبھی بندھے ہو مسیح کی خاطر زنجیر سے؟ ویسے نہیں، دوسرے کاموں کی وجہ سے نہیں، مسیح کی وجہ سے آپ کو چین ڈال دی ہو. کسی مرد کو، عورت کو، سوچو پڑھی؟ آپ کہیں گے نہیں. آپ کہیں گے اگر پالوس کو پڑھی ہے تو ساری کلیسیا کو تو نہیں پڑھی تھی. بالکل آپ ٹھیک کہیں، خادموں کو جو بولتے ہیں. تو پھر کیا معنی نکلے؟ اگر آپ مسیح کی خاطر دکھ سہ لیتے ہیں تو یہ چین ہی پہننا. آمین. اگر آپ نے دکھ اٹھا لیے تو یہ یوک ہے. وہ دکھ آپ اگر سہ گئے تو وہ یوک آپ نے پہن لیا اور ثابت ہو جائے گا یہ نقش قدم پہ چلنے والا شخص مسیح نقش قدم پہ. اسرائیل نے فالو نہیں کیا، پیروی نہیں کی، اس لیے کہ سفرنگ انہوں نے پہنی ہی نہیں. تو پھر کیا انہوں نے سفرنگ صحیح نہیں؟ سفرنگ آئی ان کے اوپر. پر سنیے، یہ بہت جو لفظ میں بولتا ہوں اس سیریز کے اندر یہ بہت سینسٹیو ورڈ ہے. بعض آپ کو جملوں میں سمجھ آ جاتی ہے مگر یہ آپ کو ایک ہی لفظ میں سمجھنا، جملے میں نہیں، ایک لفظ میں. اسرائیل نے یوک سفرنگ کا نہیں پہنا، پر سفرنگ آئی ان کے اوپر سزا کے لیے، آرام کے لیے نہیں. میں نے آپ نے جو سفرنگ پہنی ہے یہ سزا کے لیے نہیں، یہ آرام کے لیے. پریز دی لارڈ. آپ مسیح کی خاطر دکھ اٹھائیں گے تو آپ کو آرام ملے گا، آپ کو چین ملے گا. جب پلوس لوگوں کو دھکے پڑتے تھے انجیل کی خاطر، وہ خوش ہوتے تھے کہ تیرے نام سے ہمیں دھکے پڑے، تیرے نام سے ہم ستائے گئے، تیرے نام سے ہمیں دکھ دیے گئے ہیں. آپ کا یہاں دکھ اٹھا کے یہاں پہنچنا، مثلا آپ کو کئی روکتے ہوں گے گھر والے، چھوڑو بارش ہو رہی ہے نہیں جاؤ، مگر آپ پہنچے. کئی کہتے ہیں کہ چھوڑو ریسٹ کرو، آرام کرو، اگلی دفعہ چلے جانا. آپ نے کہا نہیں مجھے جانا ہے. ابھی آپ کی رضا نے کی گواہی سنی کہ یہ 1000 میل دور تھا، کام ختم ہو گیا اور وہ چھٹی نہیں کی پہنچا. اور کوئی کہے جی میں بزنس مین بن گیا ہوں اور خدا کے قدموں میں نہ دکھے، اس سے دنیا دار بندہ کون ہوگا جو پیسے کے لیے جا رہا؟ اپنا ٹائم ایڈجسٹ کریں، مینٹین کریں کہ خدا کے وقت کو کس طریقے سے آگے پیچھے دوسرے کاموں کو کرنا. یہ تو خدا کے پیاروں کا وقت ہے، سمجھے؟ یہ اس کے خون خریدے لوگوں کا وقت ہے. اس لیے ہمیشہ اپنی لائف سے اس کے نام کو جلال دیں. دکھ تکلیف آئے تو کیا کریں؟ بولے گھر بیٹھ جائیں، اور بیٹھتے ہیں لوگ. میں نے بہت ٹیمپریچر میں بھی کلام سنا ہے. بعض دفعہ ہاسپٹل گیا ہوں اور ہاسپٹل سے سیدھا آ کے ڈائس پہ کھڑا ہوں، بڑی دفعہ. اور جب کھڑا ہو جاتا ہوں تو بالکل، کیونکہ یہ دکھوں کا یوک یہ ساری زندگی چلنا ہے. اسی لیے تو میری پہچان ہے کہ میں اس کا فالوور ہوں یا نہیں، میں پیروی کرتا ہوں یا نہیں، میں دعویٰ کروں پیروی کرتا ہوں، اور دکھ مجھے ستائیں، دکھ میں جھیل نہ سکوں، گھرانہ مجھ سے مینٹین نہ ہو، جاب بزنس میرے قابو میں نہ ہو، کلیسیا کے اندر میں ایک اجنبی سا دکھائی دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لکھا وہ کرائسٹ ہمیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ اس کے بولیے نقش قدم کے اوپر چلے. ہماری پیروی، ہمارا نقش قدم پر چلنا یہ بتاتا ہے کہ جیسے دکھ مسیح نے سہے ویسے ہی میں بھی دکھوں کی زنجیر کے اندر ہوں، یوک پہنا ہوا ہے.
क्योंकि उसका जुआ दुखों का मुलाहिम है। तो आपको दुख मुझे मिले तो घबराना, ये पहचान है। यही तो सोने की पहचान है कि जितना मर्जी आग में उसको फेंको, जितनी मर्जी टेम्पटेशन आए, वो खालिस रहता है, अपना आप दिखाता है, अपनी झलक दिखाता है कि मैं गोल हूं, मैं खुदा का बंदा हूं, बंदी। दुखों से नहीं घबराता, लू से नहीं घबराता, परेशानियों से नहीं घबराता, मैं तंग नहीं पड़ता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे जितने मर्जी दुख हमारे ऊपर आ जाए, दुखों के पहाड़ आ जाए, जो मर्जी आ जाए, पतरस कहता है अगर किसी मुसीबत में दुख में पड़ो तो ये मत कहो ये कोई अनोखी बात नहीं है। हिस्ट्री उठा के देखो, खुदा के सारे शागिर्द कलीसियाओं ने दुख उठाए, उठा के देखो, ये कोई अनोखी बात नहीं जो तुम पर हुई, ये कोई फर्क सा नहीं आपके साथ हुआ। हम कह देते नहीं नहीं मेरे दुख फर्क है, पादी को क्या पता, दूसरे रिश्तेदार को क्या पता, ईमानदार को क्या पता मेरी क्या प्रॉब्लम है। तो भाई भी तू फॉलोअर नहीं है, तू पैरोकार नहीं है, तू पैरवी नहीं करता, पैरवी करता है तो देखो पालूस से पूछो, कहता है जंजीर से जकड़ा हुआ हूं, कैद किया हुआ है, मगर कहता है कि उस हालत में भी कलाम सुनाऊं, दुआ करो, वो तौफीक मुझे दे और मैं इस दुख के अंदर कलाम को उसी तरह बयान करूं, दिलेरी के साथ, जिस तरह कलाम सुनाना मुझ पे फर्ज है। वही मेरे अंदर आपको मिलेगा जोश। चाहे दुख मेरे ऊपर कितना भी क्यों ना हो, मेरा पैशन कम नहीं हो सकता। आप गए जितनी मर्जी सफरिंग आ जाए, मैं खुदा की बारगाह से नहीं हटूंगा। दाऊद कहता है मेरी एक ही दरखास्त है, ऐ खुदा कि तेरे घर में रहो और तुझसे इस्तफसार किया करो, तुझसे बातचीत किया। ये बादशाहों जो है इतना रिच आदमी, आप सोचिए यरूशलेम का बादशाह, वो कहे मैं तेरे घर में, और यहां खुदा तौफीक देता है घर बनाने को, कहता है अब नहीं, अब मैं घर में रहूंगा, तेरे घर में नहीं। ये जो दे दिया है ना घर, अब इसी को बनाऊं संवारूंगा और इसी में अंदर बैठ के गीत गाऊंगा कलीसिया के साथ नहीं, तेरे घर में ये मैं और तुझसे इस्तिफसार किया करूंगा। खुदा के हुजूर एक ही दरखास्त करता है कि तेरे घर में रहूं और तुझसे इस्तिफसार किया करूं, बातचीत प्रेयर उठाऊं। तो खुदा की बारगाह के अंदर आप दुखों की हालत में भी पहुंचे, तकलीफों की हालत में भी पहुंचे। और हमें तो तकलीफें मिली नहीं, अभी तो वो सही भी नहीं। हमने जो दुख मैं आज बयान कर रहा हूं, वो तो जो खादमों पे आए वो तो अभी सही भी नहीं। अभी तो सिर्फ जॉब का, बिजनेस का, रोटी पानी का को पैसा कम हो गया, बस इसी का ही चल रहा है चक्कर। ये नहीं कि गवाही देता देता किसी ने उसको मारा है, गवाही देता देता कलाम सुनाता उसको पैदल चलना पड़ा है, उसके बाद पैसा नहीं था, भूख में था, प्यास में था, वो निकला हुआ है, तो घर वाले के उसने तो खाना भी नहीं खाया। हाँ, ये दुख है, ये तकलीफ अभी तक आया नहीं। घर वाले के नहीं, वो किसी जगह अंजील सुना रहा होगा, किसी घर में विजिट कर रहा होगा। ये क्या है, यहां तो वो जिसने विजिट करना है वो पहले आगे बैठा होता है, वो एक अपना फेसबुक का पकड़ के, एक बच्चे ने अपना पकड़ा है, मां ने अपना पकड़ा हुआ है, ये विजिट हो रहे हैं। आपस में बातचीत करने का टाइम नहीं है। उन्हें क्या विजिट करना, उन्हें कहा रूह जाके जीतनी है, कहां जिंदगियां बचानी है, कहां दुख सहना है। ज्यादा करेंगे एक आयत लगा देंगे ऊपर फेसबुक पर, जी मिनिस्ट्री हो रही, जाओ जाके को रूह जीतो। बैठो ना किसी जगह पे काम करते हो, वहीं कहो ये मैं यहां ही रजिस्टर के ऊपर हाजिरी लगा लेता हूं, लगाने देते हैं तुम्हें। हाँ, मजाक बना लिया है हमने। दुख उठाना जो है वो नहीं आता, ना उठाना चाहते, और अपने काम के ऊपर इस कदर जोर
दिन रात जागना, मेहनत, किसी तरह पैसा बन जाए मेरे पास, मेरे बच्चों के लिए बन जाए, अच्छा घर गाड़ियां बन जाए, मगर आसमान की बादशाही की कोई फिक्र नहीं, वो नहीं फिक्र है किसी को। दुख उठाना ये नहीं है। तो पौलुस रसूल कहता है जंजीर से बंधा हुआ एलची हूं, खादम हूं, फखर से कहता है जंजीर पड़ी है। आज किसी खादम को जंजीर पड़े तो जंजीर का जिक्र तो नहीं करेगा, वो खिदमत का जरूर करेगा। वो कहो नहीं वो तो ऐसे ही किसी ने मुझे जबरदस्ती पकड़वा दिया, वो कहे हाँ मैं जंजीर से जकड़ा हुआ, हाँ वो कहे इस बात को। और फिर कहता है कि खुदा हमें असीरों की तरह गश्त कराता है, असीरों की तरह। असीर वो जो जंजीर से बांधा होता है, तो कहता मुझे भी तो जंजीर से बांधा हुआ, जिस तरह वो असीर, हम भी असीर नहीं, असीरों की तरह। अब ये देखें फर्क, एक लफ्ज में आपने जुमले का मतलब फर्क करना है। इजराइल ने सजा के लिए असीरी ली नबूकदनेस्सर की। पहले लकड़ी के जुआ थोड़ी सजा देनी थी, बाज नहीं आए तो लोहे के जुए डाल दिए गए और नबूकदनेस्सर ने बहुत उनको सजा दी। और लाइन की लाइन इजराइलियों को, यहूदा को बांधा होता था पांव में चेन डालकर, सबके पांव बंधे हैं और इस तरह घसीट घसीट कर ये कैदी चलते। तो बाइबल में जंजीर कहा गया है, मगर आज के दौर में हथकड़ी या पांव में बेड़ी। तो यर्मिया को भी साथ पकड़ के वो ले गए। जब नबूजरदान जो नबूकदनेस्सर का जनरल था, उसको पता चला कि यर्मिया को भी इन्होंने पकड़ लिया है, तो नबूकदनेस्सर का यर्मिया को जल्दी से छोड़ो और उसके पांव की जंजीर खोल, उसको भी ले गए। खुदा ने खलवाई, भाई इसको क्यों, वो तो सजा के लिए, उनको तो मैंने ले जाना है। तो वो जो जंजीर पड़ी उनके ऊपर, इजराइल के ऊपर, वो सजा के लिए, काल के लिए, कैद के लिए, वबा के लिए जुए पड़े, क्योंकि यहोवा के जुए से निकल गए। मगर मैं आप जो पौलुस कहता है असीरों की तरह गश्त कराता है, उसको भी जिस शहर में जाता था पकड़ लेते। कहते मैं भी असीरों ही की तरह सिटी टू सिटी जा रहा हूं ताकि उसके इल्म की खुशबू फैलाता चला जाए। वो फर्क हो गया। तो उसकी असीरी जो पौलुस की है जंजीरें, ये सजा के लिए नहीं है बल्कि लोगों को रिहाई दिलाने के लिए। आमीन। कोई रो नहीं रहा, कोई परेशानी नहीं है। लिखा है हम भी असीरों की तरह, हाँ, जैसे वो कैद के अंदर जाते हैं तो हम भी कैदी हैं, हमें भी चेन पड़ी है, पर ये जुआ मसीह का है जो मुलायम है। चेन ऑफ सफरिंग हमने पहनी हुई है ताकि खुदा के कलाम इल्म की खुशबू हम फैलाते चले जाए। जंजीरों के अंदर, दुखों के अंदर भी होंगे, पर कलाम सुनाते चले। आप ईमानदार खादम तब कहला सकते हैं अगर दुखों में भी आप फेलोशिप आप जारी रखें। दुखों में, अच्छे वक्त में तो बहुत कम करते हैं लोग, कहते हैं जी अच्छे वक्त में जाऊंगा, अच्छे में तो जाते ही नहीं ना, वो ऐसे करते हैं ना, खाने पीने, आराम। सुने गौर से, खुदा का ये प्रोग्राम है कि उसके लोग यहां सफरिंग उठाएं। ये सुन ले भेद, खुदा चाहता क्या है उसके लोग यहां पर क्या करें, सफरिंग उठाएं। क्यों उठाएं? ताकि इनका दिल दुनिया में ना लगे। जिस तरह बनी इस्राइल के ऊपर सफरिंग मिस्र में थी, लिखा कि खुदा ने इजाजत दी फिरौन को अदावत रखे मेरे लोगों से, ताकि उनका दिल मिस्र में ना लगे, ताकि उनको निकाल कर मैं मुल्क कनान में ले जाऊं। हाँ? तो वो वहां पर दुखी थे मिस्र में। हम यहां पर दुख उठाते हैं तो कहां जाएंगे? हम कहेंगे किसी अच्छे से मुल्क में जाए, वहां भी यही होगा। जो मर्जी मुल्क चुन लें,
यही होगा, जिस मुल्क में भी होगा, क्योंकि उसने सफरिंग का जुआ तैरना है तो सफरिंग तो आएगी, वो तो अंजीर सुनाएगा, उसको तो मारपीट पड़ेगी। इसलिए दुखों की जंजीर जो है, सफरिंग जो है, बार बार ये कहूंगा मसीह के दुखों की, जो मसीह के लिए आपके ऊपर आए, जो आप फेलोशिप के लिए निकलते हैं, ये मसीह के लिए निकलते हैं, आप टाइम देते हैं मसीह के लिए देते हैं, आप रूहें बचाते कोई दुख उठा रहे हैं, ये मसीह के लिए रहे हैं, आपको पानी नहीं मिला, आपने मसीह के लिए ये सहा। बारिशों के अंदर हमने, गर्मियों में पसीनों के अंदर, एक दफा मैं सुनील एक मेमोरी सर्विस पे, हालांकि रेस्टोरेंट में थे, खचा खच भरा हुआ था और 1 घंटा कलाम सुनाना था, तो उन्होंने कहा गर्मी बहुत है, और ऐसे पसीना बहता था जैसे बारिश में नहा रहे। मैंने वहां ये नहीं किया कि वहां 15-20 मिनट लगाऊं, पूरे जोश के साथ पूरा कलाम खुदा की खिदमत की, क्योंकि हमने चेन दुखों का जुआ पहना हुआ है, हमें खुदा का काम करना है। तो सुनील उसके बाद फिर एक प्रोग्राम में हमें जाना था, वो भी एक रेस्टोरेंट में था, पर वहां पूरे फुल एसी, वहां आप कांपेंगे। तो मैंने कहा ले सुनील, अब यहां पर सर्दी का मौसम, वहां गर्मी थी, यहां सर्दी। अब हमें बड़ा डर था कि गर्मी से निकल के आए हैं, यहां सर्दी, फौरन ही हम वहां दूसरी जगह पर पहुंचना। मगर खुदा के इंतजाम, कहीं आपको दुख में, कहीं आपको थोड़ा सा चैन मिल सकता है। ये आज की नहीं, ये हर रोज हमें ये करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि जब ये योग पहना है चेन सफरिंग की, कैसे रुक जाऊं। मैं पहली अपने मसीह की करता हूं, उसके नक्शे कदम में चलता हूं, तो उसके दुखों को भी कोई देख ले। उसके दुखों को तो गुड फ्राइडे का भी पता चलता है लोगों कि उसने कुछ स्लीप भी उठाई, उस दिन ही पता लगे, और ईस्टर को उनको पता लगता है वो जी उठा, समझे, ये 2 दिन उनको पता चलता है। मगर जो ईमानदार है, पौलुस रसूल की तरह कहता है मैं हर रोज मरता हूं, हर रोज, तो इसका मतलब हर रोज ही जिंदा होता है। गोया मसीह की मौत और मसीह की जिंदगी दोनों को रोज दिखाता है, समझे। तो फिर छोटी छोटी तकलीफें हमें क्या पीछे कर सकते, कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से, बोलिए, जुदा कर सकती है? कौन सी, कोई बताए तो सही। कौन? यानी रोटी पानी घर में ना हो तो वो बैठ जाए कि मैंने नहीं जाना चर्च में, खुदा ने मैं भूखा रखा हुआ है। वबा उसके घर में घुस जाए तो कहे कि मैंने तो इश्तिहार बार लगाया हुआ था कि वबा तेरे खैमे में नहीं जाएगी, ये तो अंदर आ गई। ये पैंडेमिक के अंदर यही तो लोगों ने किया ना, हर घर के ऊपर उन्होंने लगाया हुआ वबा तेरे खैमा में, उन्होंने ये रुक जाएगी, इन्हें पढ़ लेगी। हाँ, और चाहे ईमानदार हो वो जा सकती, आमीन, वो जा सकती है, पर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि आराम भी वो देता है। अगर दुखों में से गुजारता है तो आराम भी वो देता है, चैन भी देता है। वो हमारा कुछ नहीं, ये दुख मुसीबतें बिगाड़ सकती। जैसे गोल्ड का आग क्या बिगाड़ेगी उसका, हमारा क्या बिगाड़ेगी, दुख क्या बिगाड़ सकते हैं हमारा। पतरस कहते हैं जूं जूं, पतरस के खात में सुनिए, जूं जूं यानी दर जाता, और से सुने, जूं जूं मसीह के दुख हमें ज्यादा मिलते हैं, आमीन, जूं जूं, बोलिए, मसीह के दुख हमें ज्यादा पहुंचते हैं, ज्यादा मिलते हैं, उसी कदर उसकी खुशी हमें और ज्यादा मिलती चली जाती है, ताकि उसके आसमान की बादशाही में और नहायत खुशखुम हो सके, वो भी उसी तरह बढ़ती चली जाए। जूं जूं मसीह के दुख हमें मिलते हैं तो खुशी नहीं मिलेगी, तो लिखा खुशी भी उसी तरह हमें मिलती चली जाएगी, वहां तक ले जाएगी जहां हम खुशी से मसरूर हो जाएंगे आसमान की बादशाही। तो इसका मतलब है
अगर दुख आएंगे तो साथ ही खुशी, जो जो दुख वैसे वैसे वो शादमान। ये आराम है दुखों की जंजीर पहनने वालों को कि खुशी उनके साथ चलेगी। और पतरस के खात में आगे पढ़ने लिखा है कि जब तुम्हें कोई मलामत करता है, मुसीबत में लाता, दुखों में, तो लिखा है जलाल का रूह, पाक रूह तुम पर साया कर लेता है। जो ही आप दुखों से गुजरते हैं तो होली स्पिरिट जलाल का रूह आपके साथ आ जाए, आपको कवरिंग देता है। आप कहते हैं मैं कैसे सह गया, कैसे शादमानी मेरे अंदर है? होली स्पिरिट ने साया कर लिया, होली स्पिरिट जलाल का रूह उसने घेर लिया। यानी हमारे दुखों में हमारे साथ होली स्पिरिट मौजूद है। दुख सह रहे हैं तो क्या होली स्पिरिट ने छोड़ दिया? नहीं, उसने साया कर दिया ताकि हम लायक तरीके से तालीम को, कलाम को सुना सके। यूहन्ना रसूल मुकाशवा की किताब लिखी, वो कहता है, भाइयों को खत लिखता है कि मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई, मुसीबत, मसीह की मुसीबत, यानी कि मसीह वाली मुसीबत, मसीह के लिए मुसीबत, ये मानी बनता है। मसीह की मुसीबत, बादशाही और सबर में तुम्हारा शरीक हूं। भी मैं यहां पतमस के जजीरे में दुख उठा रहा हूं, तुम बाहर उठा रहे हो, तुम्हारा शरीक हूं। मैं अंदर बैठ के यहां पतमस के जजीरे में ये नहीं कह रहा कि वो बाहर वाले तो बड़े होंगे, खुदा तूने मुझे केले को बसाया हुआ है। कहता मैं तुम्हारा शरीक, तुम भी उठा रहे हो, मैं भी उठा, हर एक को फर्क फर्क जगह पर इस्तेमाल कर रहा है। तो ये उसने नहीं कंप्लेन की। ये हमारी जिंदगियों में पता चल जाए, मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई, मसीह की मुसीबत, बादशाही और सबर में तुम्हारा शरीक हूं। और पतमस के जजीरा के अंदर खुदा ने मुकाशवा की किताब उतार दी, दुखों का जुआ पहना। पतमस के जजीरे में कोई दरख्त नहीं होता, वहां पर यह कैद था। तो आप सोचिए 100 साल का ये यूहन्ना, बाकी तो सब शहीद हो गए, ये एक शागिर्द था जो लंबी उम्र, जो तबई मौत मरा। तो आप बूढ़ा हो गया है, पर मुकाशवा उतर रहा है, जंजीर पड़ी हुई है, बेड़ियां पड़ी हुई हैं, पर होली स्पिरिट ने साया किया हुआ है, जलाल के रूह ने, और मुकाशवा उतर रहा। दुआ भी नहीं करनी, चर्च भी नहीं जाना, नबूवत हुई है जी मेरे ऊपर। अच्छा, नबूतें हुई हैं तेरे ऊपर जी, मुकाशवे आए हैं मेरे ऊपर, दुख उठाना नहीं, मुकाशवे हुए हैं। कैसा गीत कहते हैं, कैसा गीत गाया? ये रूह में गाया मैंने। और गई भी गिरजे तुम गए नहीं कभी, जाके स्टूडियो में एक रिकॉर्ड करा के तो सोचते हो मैंने वर्शिप कर ली। जाओ कलीसिया के साथ मिलकर वहां दिखो, वहां तो दिखना नहीं। वर्शिपर हैं जी, ये हैं वर्शिपर, यहां जो गाते हैं, समझे, ये हैं वर्शिपर। बेशक इनके सॉन्ग आगे चले जाएं, पर चर्च में तो दिखे, कलीसिया के साथ तो दिखे। तो दुख उठाना नहीं, मसीह के लिए काम करना नहीं, शोहरत चाहिए, नाम चाहिए, पैसा चाहिए, दुख नहीं कि दुखों की राह से हमें मिनिस्ट्री करनी है। तो खुदा के लोग जब दुखों में पड़ते हैं तो लिखा है जलाल का रूह, बोलिए, तुम पर साया कर लेता है, घेर लेता है। और यूहन्ना रसूल को पतमस के जजीरे में जलाल के रूह ने घेरा। अब लोग कहें कि यूहन्ना तुझे यहां पानी नहीं मिल रहा, यहां तुझे बैठने की जगह नहीं मिल रही, तो कहां होली स्पिरिट तेरे साथ है? होली स्पिरिट ही तो करा रहा है, अलग दुनिया से अलग करके ले गया है कि यहां बैठ के ये जो कलाम की बातें हैं वो सुन, लिख ले, समझे। दुनिया में तो कई तुझे जो है और तरह की मुसीबतों में डालेंगे, ये मुसीबत ये है, ऐसा ऐसा रेवलेशन जो आज भी कई लोगों को नहीं पता चलता, मगर खुदा के
की तरह योक पहने हुए, चेन ऑफ सफरिंग पहने हुए हैं, दुखों की जंजीर अपने ऊपर पहने हुए हैं, उनके ऊपर मुकाशवा की किताब आती है और ऐसों को तौफीक मिलती है कि इसका पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक। वो मुबारक। बनी इसराइल सजा के लिए असीरी में गए, पलूस भी जंजीरों में जकड़ा हुआ, यूहन्ना रसूल भी जंजीरों बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। पर ये सजा, रोमी तो सजा समझते हैं, पर वो सजा नहीं समझते। वो कहते हैं ये जुए पड़े हैं हमारे ऊपर दुखों के, और क्राइस्ट कहते हैं ये मलाइम है, इसको सजा का ना समझना। बेशक वो एज़ा रसानी दे रहे हैं, पर ये तो दुनिया को रिहाई के लिए ये पैगामात तुझे मिल रहे हैं। गोया वो उस असीरी जंजीरों के अंदर वो आजाद हैं, वो लोगों को आजादी दे रहे हैं। लिहाजा चेन ऑफ सफरिंग ये दुनिया के दुख नहीं, ये मसीह की खातिर दुख है जिनसे लोगों को आराम मिलता है। और आप जॉन बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, क्राइस्ट को बैप्टिज्म दिया है उसने, मसीह को, और कहा ये खुदा का बर्रा जो जहां का गुनाह भाग जाता है। मसीह को नबी नहीं मानते थे यहूदी लोग, कम मानते थे, पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मानते थे। उससे हेरोदीस भी डरता था, और हेरोदीस और तमाम रोमी फकी फरीसियों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कलाम सुनाता था? ऐ शाम के बच्चों, फई की औलाद, सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से बचो? ये मेरा कलाम कैसे सुनने के लिए आ गए? तुमने तो यसाया का नहीं सुना, यर्मिया का नहीं सुना, हिजकियेल का नहीं सुना, तुमने तो खुदा यहोवा को छोड़ दिया। सांप के बच्चों, किसने तुम्हें यहां भेजा है? समझे? इतना वो कलाम सुनाता था। तो फिर उसको कुछ कह तो नहीं सकते थे लोग, नबी तो मानते थे, कहते फिर अपना गुस्सा निकालने के इसमें बदरू है, ये कह देते, ये हमें इस तरह कहता है, हम तो ठीक है यही होगा। हा? और जैसे हेरोदीस वो डरता था, कहता को नबी आया हुआ। और जब हेरोदियास की बेटी को हेरोदेस ने पूछा क्या मांगती है, तो मां ने कहा इसको क्या है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर चाहिए। भाई तू हेरोदेस के महल में तुझे यूहन्ना का सर क्यों चाहिए? क्या प्रॉब्लम है तुझे? भी तू रोमन अपनी गवर्नमेंट के अंदर, और तुझे चाहिए सर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का। वो क्या कहता था हेरोदेस को कि तुझे अपने भाई की बीवी को रखना रवा नहीं। उन्हें उंगली रख दी उसके ऊपर भी कि शैतान आदमी, तूने अपनी भाई की बीवी के ऊपर नजर रख ली, ले आया उसको। तो वो हेरोदियास ने कहा यूहन्ना को तो खत्म कराओ, ये तो सारा मशहूर करता जा रहा है, समझे। और जब हेरोदेस ने कहा मांग, जब वो डांस करी उसकी बेटी, मांग तुझे क्या चाहिए? मां ने कहा मौका है यूहन्ना को तो उड़ाओ। उसने कहा यूहन्ना का सर चाहिए। हेरोदेस डर गया, क्योंकि वो भी डरता था, कामता था कि वो नबी तो है। उसको मजबूरन उसको सर काट कर ट्रे के अंदर, थाल के अंदर यूहन्ना का सर पड़ा और पेश किया गया, समझे। उस डांसर को, नाचने वाली को, उस दुनियादार औरत को जो आज भी कई खादमों के सर इसी तरह देखती, उनको गिरता देखती है, खुश हो। बहुत बहुत दुनियादार लोगों को देखा है कि ममसूओं की गर्दनें उड़ती, उनको अच्छा लगता है। थाल के अंदर उसने कहा अब बोल मेरे खिलाफ, कैसा तेरा मजाक उड़वाया है, उड़ा दिया है। पर उसकी गर्दन थाल में पड़ी क्या कह रही है कि मैंने
दुखों का जुआ अपनी गर्दन पर पहना दो। आमीन। वो तो कहते उड़ा लो गर्दन। और भाई एलिया को तुम कैसे मार सकते हो? वो फिर आएगा। एंटीक्राइस्ट के दौर के अंदर एलिया की खिदमत फिर आएगी। उड़ा के देखो सर, फिर खड़ा हो जाएगा। फिर पौलुस और सिलास का मरकस उसकी टीम में था। पौलुस के साथ कौन था? मरकस। वो खिदमत से निकल गया, छोड़ दिया साथ और वापस आ गया। उसने कहा मैं टूर पे नहीं जा सकता, रास्ते में आ गया। हमने बहुत बहुत खादमों को आजमाते हैं जो रास्ते से साथ छोड़ते हैं। खादम भी कहलाते हैं पर रास्ते से निकल जाते। पर खुदा का काम तो जारी रहना है। उसने फिर सलास को अपने साथ लिया कि जो मुड़े ना, जो उबे करे, माने। याद रखिए कि खादम हमेशा अपने साथ उसको रखेगा जो उसकी तरह काम करे। जो आपको दिख रहा है इसका मतलब है खादम उसका सोच रहा है। ये पहचान है। और अगर वो नहीं है तो खादम उसको लेकर नहीं चल सकता, वो वक्त नहीं देगा। पौलुस रसूल कहता है तीमुथियुस, तूने चाल चलन, तालीम, ईमान, अमल, सताए जाने, दुखों में मेरी पैरवी की, मेरे नक्शे कदम पे आया। समझे? उसको वो डील कर रहा कि जैसे मैंने दुख उठाए, तूने मेरी पैरवी की, मेरे साथ चला, नक्शे कदम पे मेरे पीछे पीछे खड़ा था, आया। समझे? तो पता ना चले कि तीमुथियुस आ रहा, तीतुस आ रहा है, कौन आ रहा, पता क्यों नहीं चलता? इसी तरह कलीसिया क्यों नहीं पता चलता कि खुदा के साथ कितना चलते, कितनी फर्माबरदारी, कितना उबे करते हैं, कितना रेगुलर है। जब मर्जी, जहां मर्जी, मसाया के कदमों के नीचे जंजीर पहनी हुई सफरिंग की, दुखों की, वो लोग। तो पौलुस रसूल तीमुथियुस को फिर कहता है, मसीह के अच्छे सिपाहियों की तरह मेरे साथ दुख उठा। मसीह के अच्छे सिपाहियों की तरह मेरे साथ, अकेला नहीं कि मैं अकेला ही जाना। हाँ? नहीं, मेरे पास टाइम होगा तो चला जाऊंगा। मेरे साथ दुख उठा, जैसे मैं कहता हूं कर उसका। यहां तो साहब किताब को किसी को बात बताने वाला है ही नहीं कलीसियाओं के अंदर। यहां तो बस अपनी पड़ी हुई है, पैसे की पड़ी हुई है, रूहें बचाने की नहीं। पर खादम कहलाते, ईमानदार कहलाते, कहता मेरी पैरवी कर, अच्छे सिपाही की तरह दुख उठा। तो दुख यौक पहनी होगी। और कहता है आगे सुनिए, दुख उठा और बशारत का काम सरंजाम दे, योग पहनेगा तो ये मुनादी होती। वैसे नहीं हो सकती। समझे? वैसे हो ही नहीं सकती। योग पहन ली है, अगर मुनादी कर रहे हैं तो योग पहन ली दुखों, क्योंकि दुखी आने हैं ना आगे। आप कहते नहीं मैं खादम हूं, तो भाई तुझे तो कभी देखा नहीं रूह जीतते, तुझे तो कभी रेगुलर देखा नहीं, तो ईमानदार कैसे कहलाता है? रेगुलर तो है नहीं, तेरी फैमिली है नहीं, तेरी टाइट रेगुलर नहीं है, और कैसा तू ईमानदार, कैसे दुख तू सहता है, कैसी तू वर्शिप करता है, कैसी कमाई में खड़ा होती है, कैसा म्यूजिक बजाती है, कैसा? ये तो दुखों का काम है। समझे? जो मसीह के दुख हमें ज्यादा मिलते, ज्यादा, जू कम नहीं हो। मैं खादम हूं और अपने आप को मुकाशवाद में समझता हूं और समझू और दुख ना मिले। यहां तो पेट खाने को जब मिल जाते हैं एडों के पैसे से, कहते हून खिदमत शुरू हुई है।
अभी तो तू बर्बाद होने लगा। वो हर खादम आपको भट्टे पे नजर आएगा। आप समझ आना, ये उस गरीब का पैसा खाने के लिए आया, वो वैसे का वैसा वहां गरीब, और ये बड़े गरीब अमीर होते जाते। अंजील सुनाने वाले अगर दुख नहीं उठाते तो वो पैरवी नहीं करते। अगर आपको पता मैंने दुखों की जंजीर पहनी हुई है, दुखों का जुआ पहना हुआ है, तो आप मसीह को फॉलो करते। आप कहें मैं दुखों में से निकलकर चर्च में पहुंच गया हूं। आप कहें नहीं नहीं, आज मुझे बड़ी तकलीफ थी, मैं नहीं पहुंच सकता। आप पैरोकार नहीं। कभी मजबूरी हुई वो एक अलग बात। हमने ये पैसे की वाली राह नहीं पकड़ी, हमें तालीम की समझ, मार नहीं खानी खुदा के हाथों। हमने दुखों की राह लेनी है, जो मेरे मास्टर ने मसीह ने ली। वो तुम्हारे लिए एक नमूना दे गया ताकि बोलिए नक्शे कदम पर चलो। खादम वो बोलिए जो जंजीर दुखों की पहने, जो चेन पहने हुए, जो जुआ दुखों का बोलिए पहना हुआ है। और पौलुस ने मरकस को छोड़ के सिलास को अपने साथ लिया। एक जगह के ऊपर आकर पौलुस सिलास दोनों को पकड़ लिया कि जंजीर सुनाते हैं, कैद कर दिया, हाथ जंजीरों के साथ बांध दिए, दीवारों के साथ, पांव में बेड़ियां, पांव काठ में लकड़ी में डालकर दोनों पौलुस और सिलास जकड़े हुए। मरकस होता तो कहता फिर फंस गए। ये कहता ना, मां कहती फंसाता ना, फिर पौलुस से सुन लेते। हाँ जा और जा, हाँ जा। सिलास नहीं कह सकता। खुदा ने मरकस को साइड में किया, सिलास को भेजा, चल। दोनों जंजीरों से जकड़े हुए, लिखा आधी रात सब सोए हुए, वो बेचारे तकलीफों में कहां नींद आएगी, रो रहे थे वो नहीं, लिखा आधी रात को हमद के गीत गा रहे थे। हालेलुया, ये आराम है। हमें तो थोड़ी सी हो ना प्रॉब्लम, रो फोन जरा कराई, जरा मेरे अंकल नु फोन कराई, फलाने नु अजे तक छुड़ाया ही नहीं, अजे तक ही नहीं शादी कराई। हाँ कितने सोंगे, ये कह अभी तक यहां तो रोटी भी नहीं मिली खाने को, और तुम लोगों को पता ही नहीं हम कहां। वो रात को बोलिए गीत गा रहे, और यहां हम आराम से चर्च में आके नहीं गीत गा सकते। ये टाइम नहीं हमारे पास। तो अफसोस ही है ना, वो ईमानदार होगा, और अगर होगा तो नहीं आता तो फिर नींद गर्म है, वापस भी आ सकता है, बहाल भी हो सकता है। शैतान बहुत पीछे लगा है, इसलिए दुखों की जंजीर पहन लो। मेरा जुआ मुलायम, मेरा बोझ हल्का। तो वह हम के गीत गा रहे थे, जंजीरें दुखों की पड़ी हुई है, और जिनके ऊपर मौत की जंजीरें हैं वो सो रहे, जिनके ऊपर मौत की गुनाह की जंजीरें हैं वो सोए हुए हैं, और आधी रात को गीत गा रहे भी। चलो कलाम किताब नहीं पकड़ी जा रही, मुंह तो हमारा खुला है, गीत गा रहे थे, क्योंकि मैंने आगे बताया कि जलाल का रूह साया करता है, होली स्पिरिट मौजूद है। यहां तो कहते हैं जी साजों के साथ गीत गाएं तो मसीह का तख्त है। वहां पर दुखों में, मुसीबतों में, कैद में, वहां कोई सफाई सुथराई भी नहीं, वहां पर अकेले रात के अंधेरों में वो कलाम सुना रहे हैं, वो गीत गा रहे हैं हमद के। तो लिखा है कि फरिश्ता आया। फरिश्ता तो वहीं आएगा जहां खुदा होगा, जहां रूह होगा, और जब आया फरिश्ता तो उनकी बेड़ियां जंजीरें खुल गई। उन्होंने कहा हालेलुया। सिलास ने कहा पौलुस बड़ा गीत गाया आपने। ने कहा शाबाश बच्चे, हमें चाहे बंदे दें, हमें गाना। वो भागे नहीं वहां से, बाकी कैदी भाग गए।
दरोगा उठा, अंदर चिराग लेके आया, इसका मतलब अंधेरा था, गुप्त अंधेरों में गीत गा रहे, ये तकलीफ। और याद रखिए, कैदियों को जब खाना दिया जाता है तो भूखा रखा जाता है काफी दिन, या दिया जाता है थोड़ा सा, यहां देते हैं फेंक के, ट्रे ऐसे जाती है दूर से, ऐसे कैदियों को पलूस को कैसे देते होंगे, समझे? तो वो कहता है, भूख में तुम्हारी खातिर, प्यास में, नंगेपन में, आवारा फिरे, कैद में फिरे, अपने हाथों से काम करते हुए मशक्कत उठाते, आज तक दुनिया के कूड़े और सब चीजों की झड़न की तरह रहे, जैसे गंदगी होते, ये नहीं कि गंदगी थे, कूड़ा थे नहीं, लफ्ज फिर सुन ले, वो है नहीं, रहे, समझे? जब भी पढ़े सोच समझ, पलूस रसूल कूड़ा नहीं, वो झड़न नहीं, लिखा है पर हम कूड़े और झड़न की तरह रहे। लोग बदनाम करते हैं, हम समाजत करते, लोग बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं, लोग सताते हैं, कहते हम सहते हैं। ये वो जिंदगियां हैं जिन्होंने दुख उठाए हैं, और तीमुथियुस को कहता है दुख उठा और बशारत का काम सरंजाम दे। पतरस कहता है कि वो दुखों में नमूना बन गया, क्योंकि यही पसंदीदा है, यानी खुदा के नजदीक ये खुशी की बात है, हम दुखों में खिदमत करेंगे तो होली स्पिरिट खुश होता है, हमें देता है। वो हर रोज हमारा बोझ उठाता मसाया खुदा का बेटा, और कहता है मेरा जुआ मुलायम, मेरा बोझ बोलिए हल्का है, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। रूमी आगे बाप, अगर दुख उठाएंगे तो जलाल भी पाएंगे, अगर दुख उठाएंगे तो यहां भी खुशी देगा दुखों में। इसलिए दुखों का जुआ पहने हुए वो पैरवी करने वाला शख्स है, इसलिए खुदा के साथ जुड़े रहें, रिफाकत रखें, कभी पीछे ना हटें, अपना वक्त खुद इबादत करें उसकी, और जरा से भी सुस्ती कायली हमारे अंदर आने ना पाए, उसका जुआ लेके चलो, यही आराम है। तो तुम्हारी जाने बोलिए आराम पाएंगे। मेरा जुआ आपने ऊपर बोलिए ले लो, मेरा जुआ मुलायम बोलिए हल्का। आइए खड़े।